Dear student, today I will be discuss two sub-content of the chapter Writing and City Life. First, writing system, use and importance of writing in Mesopotamia, and second, earliest cities of southern Mesopotamia and construction of temples and their increasing importance. The signs fixed for writing spoken sounds are called a script. Mesopotamians too had their own script. They began to write when society needed to keep records of transactions, because in city life transactions occurred at different times and involved many people and a variety of goods. Around 3200 BCE, the first Mesopotamian tablets were written. These tablets contained picture-like signs and numbers. Lists around 5000 oxen, fish, bread, etc. have been found. These lists are probably of goods which were brought into or distributed from the temples of Uruk, a city in the south. मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास एक महत्वपूर्ण विषय है। बोली जाने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए जो संकेत या चिन्ह निश्चित किए जाते हैं उसे लिपि कहा जाता है। मेसोपोटामिया के लोगों के पास भी अपनी लिपि थी। उन्होंने तब लिखना आरंभ किया जब समाज को लेन देन का अस्थायी हिसाब रखने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे और उन्हें करने वाले कई लोग होते थे। सौदा भी कई प्रकार के माल का होता था। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं मिली हैं वे लगभग 3200 ईस्वी पूर्व की हैं। इनमें चिन्ह जैसे चित्र की संख्याएं दी गई हैं। वहाँ बैलों, मछलियों और रोटियों आदि की लगभग 5000 सूचियाँ मिली। ये सूचियाँ लगभग दक्षिणी शहर उरुक के मंदिरों से संबंधित हैं, जहाँ पर बाहर से आने वाली चीज़ों और वहाँ से भेजी जाने वाले वस्तुओं की सूचियाँ तैयार की जाती होंगी। People of Mesopotamia wrote on clay tablets to keep records of transactions. A scribe would well play and pat into a size which he could comfortably hold in one hand. Then he would carefully smoothen its surface. While it was still moist, he would press wedge-shaped signs on the smoothened surface with a sharp end of a reed cut obliquely. The clay would harden once it dried in the sun, and tablets would be almost like pottery which cannot be destroyed. When a written record of, say, the delivery of pieces of metal had ceased to be relevant, the tablet was thrown away. मेसोपोटामिया के लोग अपना हिसाब किताब रखने के लिए मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। पट्टिका तैयार करने के लिए लिपिक चिकनी मिट्टी को गीला करके गूंद लेता था, फिर उसे थापकर एक ऐसी पट्टी का रूप दे देते थे जिसे वह आसानी से अपने एक हाथ में पकड़ सके। वह उसकी सतहों को चिकना बनाकर सरकंडे की तीली की तीखी नोक से उसकी नम चिकनी सतह पर कीलाकार चिन्ह बना देता था। लिखने के बाद पट्टिका को धूप में सुखाया जाता था। सूखने पर पट्टिका पक्की हो जाती थी और मिट्टी के बर्तनों जैसी मजबूत हो जाती थी। उस पर कोई नया चिन्ह या अक्षर नहीं लिखा जा सकता था और इस प्रकार प्रत्येक सौदे के लिए, चाहे वह कितना छोटा हो,
एक अलग पट्टिका की ज़रूरत होती थी। जब उन पर लिखा हुआ कोई हिसाब गैर जरूरी हो जाता था तो उस पट्टिका को फेंक दिया जाता था। इस तरह से हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया के लोग अपना हिसाब किताब रखने के लिए किस तरह से मिट्टी के पट्टिकाओं का इस्तेमाल करते थे। बाय 2600 BC or so, letters in Mesopotamia became cuneiform. Sumerian was the language of writing. There was not a single consonant or vowel in the sound that a cuneiform sign represented, but syllables were there. Thus a Mesopotamian scribe had to learn hundreds of signs. He was required to be able to handle a weight tablet and get it written before it dried. So writing was a skilled craft. Writing was now used for keeping records, giving legal validity to land transfer, making, narrating deeds of kings, and announcing the changes which a king wanted to make in the customary laws of the land. After 2400 BCE, Sumerian language was gradually replaced by Akkadian language. For more than 2000 years or up to 1st century CE, the cuneiform writing in the Akkadian language continued to be in use. 2600 ईस्वी के आसपास मेसोपोटामिया में लिपि किलाकार हो गई। लेखन की भाषा सुमेरियन थी। मेसोपोटामिया की किलाकार लिपि का चिन्ह किसी एक व्यंजन या स्वर को व्यक्त नहीं करता था, बल्कि यह किसी अक्षर समूह का ध्वनि का प्रतीक होता था। इसलिए मेसोपोटामिया की लिपि को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे और उसे गीली मिट्टी पर सूखने से पहले लिखना होता था। लेखन कार्य के लिए विशेष कुशलता की आवश्यकता भी होती थी। अब लेखन का प्रयोग केवल हिसाब किताब रखने के लिए नहीं, बल्कि शब्दकोश बनाने, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी रूप प्रदान करने, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने और कानून में उन परिवर्तनों को उद्घोषित करने के लिए किया जाने लगा जो देश की आम जनता के लिए बनाए जाते थे। 2400 ईस्वी पूर्व के बाद सुमेरियन भाषा का स्थान धीरे धीरे अकदी भाषा ने ले लिया। अकदी भाषा में किलाकार लेखन का कार्य ईस्वी सन के पहली शताब्दी तक अर्थात 2000 से भी अधिक वर्षों तक चलता रहा। Settlements began to develop from 5000 BCE in southern Mesopotamia. Some of the earliest cities emerged from these settlements. These cities were of different types. Cities which gradually developed around temples, cities which developed as a center of trades, and imperial cities. So there are three type of cities emerged in southern Mesopotamia. Early settlement in the southern part of Mesopotamia began to build or rebuild the temples at the selected spots in their villages. The earliest known temple was a small shrine which was made up of baked bricks. Temples were the residence of different gods. Ur was the moon god and Inanna was the goddess of love and war. Temples were made with bricks. Their size gradually increased because several rooms were made around open courtyards. Some of the earliest temples were just like
the ordinary houses. Temples always had their outer walls going in and out at regular intervals, but walls of ordinary houses lacked such features. God was the focus of the worship. People offered grain, curd, and fish to the god. The god was also known as the theoretical owner of the fisheries, the agricultural fields, and herds of the local communities. Activities of temples gradually increased. In the time, the processing of produce was also done in the temple. It began to appoint the merchants. It began to keep written records of distribution and allotment of plough animals, grain, bread, fish, beer, etc. It became the main urban instruction. So there are many features related from the urbanization in southern Mesopotamia, especially related from the temples and kings. इस प्रकार हम देखते हैं कि दक्षिणी मेसोपोटामिया में 5000 ईस्वी पूर्व से बस्तियों का विकास होने लगा था। इन बस्तियों में कुछ प्राचीन शहरों का रूप भी ले लिया था। मुख्य रूप से दक्षिणी मेसोपोटामिया में 3 प्रकार के शहर के अस्तित्व दिखते हैं। पहले वे जो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए, दूसरे वे जो व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित हुए, और तीसरे वे जो शाही शहर के रूप में विकसित हुए। मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने अपने गांवों में कुछ चुने हुए स्थानों पर मंदिर बनाने या उनका पुनर्निर्माण करने का काम शुरू किया। सबसे पहले ज्ञात मंदिर का एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों से बना हुआ था। मंदिर विभिन्न प्रकार की देवी देवताओं के निवास स्थान थे। उर चंद्र देवता था और इनाना प्रेम और युद्ध की देवी थी। ये दोनों देवता मेसोपोटामिया के प्रमुख देवी देवताओं के रूप में थे। मंदिरें निर्माण से संबंधित काफ़ी विशेषताएं मिलती हैं। मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे। समय के साथ इनका आकार बढ़ता गया क्योंकि उनके खुले आंगन के चारों ओर कई कमरे बनने होते थे। कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों जैसा होता था, परंतु मंदिरों की बाहरी दीवारें कुछ विशेष अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी। साधारण घरों की दीवारों में यह विशेषता नहीं पाई जाती थी। देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था। लोग देवी देवताओं को अन्न, दही, मछली अर्पित करते थे, यानी उन्हें चढ़ाते थे, उनको अर्पित करते थे। आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी भी माना जाता था। मंदिरों में कई प्रकार के क्रियाकलाप होते थे। समय बीतने पर मंदिर ने अपने क्रियाकलाप और बढ़ा दिए। अब उपज को उत्पादित वस्तुओं के बदलने की प्रक्रिया भी मंदिरों से की जाने लगी। यह व्यापारियों की नियुक्ति भी करने लगा। यह अन्न, हल जोतने वाले पशुओं, रोटी, जौ की शराब, मछली आदि के आवंटन और वितरण का लिखित अभिलेख भी लिखने रखा और उसको रखने लगा। यह परिवार के ऊपरी स्तर के उत्पादन का केंद्र बन गया और इस प्रकार धीरे धीरे ये शहरी संस्था का रूप लेते चले गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दक्षिणी मेसोपोटामिया की शहरीकरण की जो प्रक्रिया थी उसकी काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं और मेसोपोटामिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं।